Here, yes, I got the recording option. Okay, guys, so meeting is being recorded now, and I'll share you the screen again. It's been, I think, 20 seconds. Oh my God, a lot of time has gone. Okay, so don't worry about the time. I will close all the codes and browser is also not necessary now. Okay, so guys, we are not doing practical till now. I was giving demonstration on only like how to use softwares and how to do the environment setup. Okay, so now actually you guys can actually I'm speaking English, so you guys can learn theories also, like you guys can write, and while teaching you programming I will speak Hindi, so you guys will understand completely, because there are some students who are not able to understand in English, and they are able to understand but not completely. So coding is like I want everyone to be understand it deeply for forever. Okay, whatever I will teach you guys, I think you will never forget that. You will remember it all the time, even after 10 years also. Okay, so now first of all, create one folder. Who already created assignment folder, don't create. Who didn't, they can create. Okay, so yeah, here you can create two folder also. Okay, like you can create where is the keyboard, Surendra? Okay, keyboard is okay. I got the keyboard. So guys, first I'm creating, and like you can create like those guys who don't have this right click option. I am telling you guys that you can do just click on that folder and press Shift F10. It will open right click in Windows. Shift plus F10. F10. Write this shortcut key. Those guys who doesn't have right click option in their laptop, they have, but they don't know how to use it because they have only one button in their laptop. So write down this shortcut key. It's Shift plus F10. F10 will be there in your top row on the keyboard, top row. Okay. So for the folder, we have a shortcut Control Shift N. It will create a new folder. I am giving this new folder a name. Okay, so name I give you. I give assignment. You can give any name. Assignment will be recommended here by me. Okay, so you can create assignment folder also. In this assignment folder, I'm creating a new, because in 1 year there will be a lot of assignments. So I want to manage all folders. To manage folders, we create a folder. Inside that we create some folders so we can easily go to the particular file. We don't have to search 1,000 files. Okay, so that's why I'm creating this folder. So I'm creating in assignment, I'm creating folders on basis of month names. Okay, so now we are in October month. October month. So I created October folder. Okay, this is the October folder. Let me check the chat also if somebody want to say something so I can see. Okay, no, everyone. Okay, okay, guys. So here in October folder, you can make folders. Okay, so you can uh, make folder, give any name, like I gave it to assignment one. We will do the assignment first. Yesterday we did that second assignment, that was about to calculate area of a circle. Okay, so today we are going to do the first assignment, which is uh, about two arithmetic operations in one program only. All four arithmetic operations. There are more arithmetic operations, but we will do major four: addition, subtractions, multiplications, and division. Okay. If you guys have any doubts, you can ask. Okay. So here I open this folder. Okay.
Now I want this folder to be opened in Visual Studio Code. Okay, so for that we have a lot of options. Like first of all, I can click on that assignment and I can click on Open Studio option. Okay. Second, I can go inside that folder and I can right click anywhere in that inside that folder and I can click on Open with Studio. This uh, VS Code option. Okay, it will open this folder into that Open Studio, which is our text editor. If you get this window, please check this. I trust the author of all files because you are the only author who created that folder. Okay. Then click on yes, I trust the author. That's it. So we got it now. I think we have around 21 people only. Okay, I don't know why other guys are not taking interest in the practical class. So here we have assignment one folder. You can give it any name. Okay, so inside that assignment one, I want to create a new file. You guys will get like this here. One welcome, also welcome. So here, this is the folder. This is the last demonstration of this application. I will never repeat it again and again every day because it's taking a lot of time. Okay, and we can't do repetition of same things again and again. We have to start the C practical because still we didn't start. 3 days has been gone, I think, right? So I will tell you guys about basic options. Okay, here these are the 4 icons because these are the 4 icons. This is the file icon. Okay, it will hide your folder view and it will show your folder view. If you see something like this and if you are confused where are my files and folders, okay, so don't worry guys, click on this file icon, it will open for you. Okay. Okay, let me speak in Hindi. I think some guys they may feel stress, okay, in English class, so I will speak in Hindi. तो ठीक है गाइस, मैं हिंदी में भी बात कर लेता हूँ ताकि लोगों के दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब। अब यहाँ पे देखो, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताना बहुत जरूरी है इसीलिए क्योंकि आप लोग जो है अभी मेरे को लगता है पूरे 3 साल तक ना इसको यूज करने वाले हो और दूसरे कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। पूरे 3 साल इसका यूज करने वाले हो, पूरे 3 साल क्या आगे जॉब में भी इसका यूज करने वाले हो। जब भी जॉब करोगे ना रियल टाइम पे ना सॉफ्टवेयर बनाओगे ना कंपनी के लिए ना तो भी इसी में बनाओगे, ठीक है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है बहुत ही इंटेलिजेंट, इसलिए मैंने इंस्टॉल करवा दिया है। आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फाइल का आइकन है स्टार्टिंग में और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन का आइकन है, उस पर आप माउस लेके जाओगे तो बता देगा एक्सटेंशन और कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसका शॉर्टकट की भी बता रहा है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ई है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सब लोग ना एक्सटेंशन पे क्लिक करें, एक्सटेंशन का व्यू खुलेगा, इधर फाइल पे करोगे तो फाइल का खुल जाएगा, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करो। आपकी ये बहुत सुविधा कर देंगे आपको कोड लिखने में, ठीक है। आपको टाइप ही नहीं करना पड़ेगा, पूरा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह रहेगी जो भी कीवर्ड का तो कीवर्ड का ये दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च में लिखो C/C++, ऐसा आप लिखोगे। जो फर्स्ट नंबर पे एक्सटेंशन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का C++, इंटेल सेंस डिबगिंग माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करके आ रहा है, उस पे मैं चाहता हूँ आप क्लिक करो, वो एक्सटेंशन का फाइल इधर खुल जाएगा, ऐसा वाला आइकन आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस आप पहले चाहो तो, ये वाला ही इंस्टॉल करना है ना कि और कोई दूसरा, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे इंटेल सेंस होना चाहिए, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो ये पूरा स्क्रीन का, ठीक है। आई होप सबने ले लिया है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन रहेगा, इंस्टॉल का मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं बता देता हूँ अनइंस्टॉल करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा इंस्टॉल का बटन आएगा, इसका आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे डिसेबल दिखना चाहिए। इसका डिसेबल का मतलब है ये इनेबल है अभी, इसलिए डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, वो डिसेबल हो गया है तो अभी काम नहीं करेगा वो, इसको इनेबल रखना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है
तो अभी इससे क्या हो रहा है गाइस, ये भी मैं बता देता हूँ इससे क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ने एक और एक्सटेंशन है, उसका नाम है कोड रनर। ये क्या करेगा, आपको कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये प्ले वाले बटन पे दबाओगे ना तो ऑटोमेटिक कोड को रन कर देगा ये, ठीक है। कोड रनर, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन है गाइस, मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे भी इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यदि इनेबल लिखा रहता है तो उस पर क्लिक करके उसको यहाँ पे डिसेबल दिखना चाहिए, यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखना चाहिए, तो इसका मतलब आपका सेट है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड कर देना, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, ये हो गया एक्सटेंशन का काम, ओके। अभी ये कभी मैं रिपीट नहीं करूंगा आज के बाद, लास्ट टाइम था ये। जिन लोगों ने देख लिया जो देख लिया, और जो लोगों का रह गया है वो यूट्यूब वगैरह से इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। एक्सटेंशन का नाम खाली मैं ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे असाइनमेंट का फाइल लेते हैं अपन, ओके। कुछ भी दे दिया, इसको नाम दे देते हैं यार, आर्थमेटिक ऑपरेशन करके कुछ भी नाम दे दो, ओके। डॉट सी। कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, एक मिनट है, मैं चैट भी चेक कर लेता हूँ। आप में से कोई कुछ पूछ रहा हो? किसी का माइक चालू है? ठीक है गाइस, सबको म्यूट कर देते हैं। ओके, ठीक है गाइस, तो अपना अपना माइक ना देख लो, आपको जब भी बोलना है तभी चालू रखो, बाकी टाइम पे ना उसको ना बंद कर दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिफॉल्ट म्यूट कर देता हूँ सबको कल से। ठीक है, तो मैंने कुछ 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 यहाँ पे कुछ कुछ बड़ा कुछ किया नहीं है, एक फाइल का नाम दिया और सी फाइल बनाया है। मेरे को लगता है सबको फाइल बनाना आ गया है, मैं एक बार बता देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो गाइस, ये देखो, ये फोल्डर ऐसा आइकन नहीं रहेगा ना, ये फोल्डर का इधर व्यू नहीं खुला रहेगा और कुछ खुला रहेगा ना, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये खोल देगा। दूसरा रहेगा तो उसकी जगह पे ये खोल देगा। ये मीटिंग जो है जैसे एंड होएगा, मैं दूसरा जो है लिंक तुरंत दे दूंगा, 1-2 सेकंड के अंदर ही लिंक मिल जाएगा आपको, और 1 मिनट के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये फोल्डर व्यू खुल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देखो एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, एक जो है अंडू करने का भी, ये नया फोल्डर को डिलीट करना, आप लोग गलती से बन गया है तो इसको वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये फोल्डर को एक्सपेंड और वो करने का ये बाद में बता दूंगा मैं, अभी जरूरत नहीं है, एक ही फोल्डर है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे फोल्डर बनाओगे इसके अंदर तो बता दूंगा मैं। यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके ले जाओ माउस में ना, तो हिंट भी दे देगा, न्यू फाइल का आइकन है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे ना तो एक ऐसा लिखने का ऑप्शन आएगा कि नाम लिखो फाइल का, जो भी फाइल है। तो आप कुछ भी नाम देके डॉट सी लिख देना, बस डॉट सी मत भूलना लास्ट में, ठीक है। मैं कुछ भी दे दिया यहाँ पे, धर्मेंद्र दे दिया, धर्मेंद्र डॉट सी, ठीक है। तो धर्मेंद्र डॉट सी नाम से फाइल बन गया है। अभी यहाँ पे मैं सी का कोड लिख के चला सकता हूँ, उसको असाइनमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये धर्मेंद्र डॉट सी, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो एक एक जादू देखो इसमें ना, एक फंक्शनलिटी ये है, मैं इंक्लूड लिखना चाहता हूँ, मैं खाली आई एन लिखूंगा ना, यहाँ पे देखो इंक्लूड लिख के आ गया। मैं एंटर मारूंगा ना, इंक्लूड लिख के आ गया। अभी जिसको किसी को भी नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ना वो सी वाला जो है इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक टीवी पे स्पीकर लगा है तो मुझे बराबर दिख नहीं रहा है, ओके। यहाँ पे जो है ये सी वाला जो है, ये वाला आपने इंस्टॉल नहीं करके रखा है, इसलिए आपके पास ना ऑटोमेटिक नहीं आ रहा आई एन करने पे। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है आई एन, ये पूरा इंक्लूड टाइप करने की जरूरत नहीं है यार, मेरे 2-4 सेकंड तो बचा ही दिया ना इसने कम से कम। तो सोचो आपके एक साल में कितने सेकंड बचा के कितने घंटे बचा देगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टूडियो आई एच भी इसने दे दिया, देखो मेरे को ना, मेरे को तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फाइल है कौन सा है नहीं है, ऐसा करते ही। ये देखो ये पूरा लिस्ट दे दिया है, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कोई बड़ा नाम है कि टाइप ही नहीं हो रहा बाबा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसा ऐसा सेलेक्ट करके इसको ऐसा कर दो, अपने आप बंद भी कर देगा, ठीक है। इसके बाद और मैं चाहता हूँ कि जो भी असाइनमेंट बनाए ना तो कॉपी पेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक कमेंट करके, कमेंट सबको मालूम है,
यहाँ पे सब लोग लिख दें। ओके, बाय करके यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको निकला है बाय धर्मेंद्र, मतलब रोल नंबर लिख दो आप पहले। ओके, रोल नंबर, ओके, रोल नंबर 108। तो मैम को ऐसे भी थोड़ा समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं ऑनलाइन हूँ तो ओ लिख दो, जो रेगुलर वाले हैं आर लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपका नाम लिख दो, जो गुर्जर वगैरह जो पहले सरनाम सरनेम लिखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है स्पेस देना है तो स्पेस दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा नाम का स्पेलिंग थोड़ा ऐसा है गाइस, पहले मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, ओके, इसलिए मैंने गलती कर दिया था, सब सर्टिफिकेट में वैसा ही हो गया था। ओके, तो यहाँ पे जो है अपना अपना नाम लिख लो ऊपर, जो असाइनमेंट बना रहा है तो अच्छा हो जाएगा, वो किसी के मिक्स नहीं होंगे, कोई किसी का कॉपी नहीं कर पाएगा ऐसा, ठीक है। मैडम को समझ में आएगा कि हाँ इसने कॉपी नहीं किया है। अभी मेरा कॉपी करोगे तो आप भी धर्मेंद्र धर्मेंद्र के नाम से फिलअप हो जाएगा उधर, मेरा फोटो आप भेज दोगे स्क्रीनशॉट लेके, तो ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे मैं इंट मैन बना रहा हूँ, इंट लिखा तो मैंने इंट भी आ गया, देखो एक कलर भी चेंज कर देता है, ठीक है। कहीं कहीं कंपाइलर जो कोड टेक्स्ट एडिटर है वो चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं फाइल खोल के रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है गाइस, ये जो सजेशन लिख के आ रहा है ना, जैसे ब्रैकेट को बंद कर दिया इसने अपने आप, कर्ली ब्रैकेट एक लगाऊंगा तो अपने आप बंद कर दिया, बीच में एंटर है, फॉर्मेटिंग वगैरह वो एक्सटेंशन कर रहा है ये सब, ठीक है। वो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना, दोनों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। एक्सटेंशन का आइकन ये है, यहाँ पे जाओगे तो आपको ना वो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे गाइस पहले मैं ले लेता हूँ, आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए जो है आप उन्हें ना दो इंटीजर लेने हैं, ठीक है। इंटीजर फ्लोट वलोट कुछ भी ले लो आप, ठीक है। और कल जो एक बंदा था वो पूछ रहा था कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा तो डिफरेंस ये भाई डिफरेंस ये है कि फ्लोट जो है मेमोरी पे वो ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। और जो डबल है वो 8 बाइट ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। तो साइज का ही है, बाकी दोनों में ही रियल कांस्टेंट नंबर आते हैं जो पॉइंट वाले रहते हैं, 3.55। तो ऐसे वाले जो नंबर आते हैं डबल और फ्लोट में दोनों मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। और भी जो है दो चार डिफरेंस है तो यूट्यूब का वीडियो देख लेना, मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, उसको सर्च मार लेना कल का मैसेजेस में, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर को एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, एक मीनिंगफुल वेरिएबल नाम दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन ना एक थोड़ा मिलता जुलता दोगे तो आप, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर को एक वैल्यू दे देता हूँ मैं 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने को एक ही वेरिएबल इसमें लेना है इसलिए मैं दे रहा हूँ। इस सबको मेरे को मालूम है, मेरे को लग रहा है सबको आता है, ठीक है। यदि वो भी इंटीजर है तो मैं एक लाइन में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। और मैं जो है कल से मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, एक एक चीज ना बता के एग्जाम्पल के साथ, जो है घर के एग्जाम्पल के प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल देख के समझाऊंगा, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा इंटीजर क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती है, सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल में कल से। आज तक अपन कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, मैं खाली डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एग्री असाइनमेंट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, और आज लास्ट दिन है। आज के बाद ना कभी भी डेमो नहीं होएगा, कोई नया चीज आएगा उसके लिए होगा, लेकिन ये चीज के लिए डेमो नहीं होएगा। सॉफ्टवेयर जैसे से इंस्टॉल करना असाइनमेंट के लिए जो है मैं बता दिया करूंगा, लॉजिक वगैरह के लिए डेमो लूंगा उसके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं, इंटीजर दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल लिए हैं, उनको दो वैल्यू दे दी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं माना नहीं करूंगा। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एडिशन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। एक कमेंट देखे मैं कर देता हूँ एडिशन, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है एक एक इंटीजर इंटीजर से इंटीजर करेंगे तो ठीक है, आपके पास आपको लग रहा है कि यार पॉइंट में वैल्यू आएगा तो आप फ्लोट वेरिएबल लो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एकदम साफ स्पष्ट दिख रहा है, कोई मतलब सरप्राइज नहीं है, वो फ्लोट में नहीं आएगा, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ही ले लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हूँ टोटल, नाम दे दिया हूँ उसको, टोटल भी बोल सकते हैं अपन, कोई दो चीजों को ऐड करते हैं या चार चीजों को ऐड करते हैं नंबर को, उसको टोटल भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप अलग अलग भी नाम ले सकते हैं, कुछ भी नाम चूज करो।
लेकिन थोड़ा मिलता जुलता रहेगा तो अपने को पढ़ने में समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ खाली, देखो ये फर्स्ट नंबर पूरा नहीं लिखना पड़ा मुझे, ये जो अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना उसको सजेशन में दे देता है वो, ठीक है। ये सेकंड नंबर भी पूरा नहीं करना पड़ा मुझे। तो ये क्या है, एक्सटेंशन आपका टाइम बचाएगा। और ये एडिटर में देखो एकदम कलर में दिख रहा है, तो वेरिएबल वेरिएबल का एक कलर है, इंट इंट का अलग है, फंक्शन का पीला कलर रहेगा हमेशा, हेडर फाइल का ऐसा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको आराम से कोड पढ़ने में आ जाएगा, आपको ना ज्यादा आंखें बड़ी करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास टोटल में ना ये दोनों नंबर का ना प्लस होके एक रिजल्ट आ गया, मतलब इसमें ना 50 आ गया, इसका मतलब 50 हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर क्या है, ये 20 है, 20 प्लस ये 30 है, 20 प्लस 30 इसका मतलब 50 है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, और मैं कल से ना ये सब चीजें ना एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पे एक प्रिंट ऐप लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे गाइस एक लड़की ना एक मिस्टेक कर रही थी कल, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मिस्टेक भी क्या कर रही थी वो। इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप जो है टेक्स्ट वेडिट जो आप इसके अंदर लिखोगे ना वो का वो प्रिंट होएगा, ठीक है। इसके बाहर का कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा, जो डबल कोट्स में आएगा वही स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट कर रही थी यहाँ पे, एडिशन ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे सजेशन भी नहीं आएंगे क्योंकि ये एक रामायण लिख रहे हैं अंदर, ठीक है। एंड सेकंड सेकंड नंबर इज ओके। यहाँ पे अपन देखो ये परसेंटेज, उसने क्या किया, परसेंटेज डी भी लिखा, उसके बाद यहाँ यहीं पे उसने कॉमा लगा दिया और टोटल भी लिख डाला, ठीक है। तो अभी गाइस इसका मतलब क्या होगा, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अपने पास ना मैं मीटिंग ना दोबारा से स्टार्ट करूंगा, और अपन लोग जो है ना 12 बजे तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसका भी मन भर गया हो प्रैक्टिस करके वो यहाँ से छोड़ के जा सकता है, कल फिर से ज्वाइन कर सकता है। उसको मैं जबरदस्ती नहीं मैं बिठाना चाहता कि तू अपना ब्रेन वॉश कर या फिर थक जाए, एनर्जी खत्म हो जाती है उसकी, भाई किसी का समझने का कैपेसिटी 1 घंटे तक है।